Okay. So till the last time, what we have done is basically your use effect and CRA, which is a create reactor. Yes or no? Okay. What happened yesterday in the lecture? Okay. Read application, use ref, fine, fine. ये दोनों चीजें हुई हैं बस, वाइट एंड रूट से। ठीक है, नो इश्यूज। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट कंफर्म इफ विजिबल। Is my screen visible to you? Yes, okay. One sec. Okay, so before we were using our create react application, but yesterday we learned about white. What is white, guys? What you got? Basically, it is similar to your React application that you have built using CRA, but a little faster, है ना? क्योंकि in that you are loading all the node modules and the requirements to create React application, but wait is just for the simple learning phase process. Correct. वहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स की या वेब पैक की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइन। सो फर्स्ट आपका एडवांटेज उसमें स्पीड हो जाता है, सेकंड अ लिटिल सिंपलर, एंड इट आल्सो वर्क्स विद द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। फाइन। सो सेम उसके लिए भी आपको नोड रहना चाहिए आपके पीसी में, नोड मॉड्यूल्स रहने चाहिए, npm एंड ऑल। फाइन। देन हाउ वी कैन क्रिएट। We are already in the folder. What is the syntax of creating that? npm create your white at the rate latest, then your project name, suppose my project, then latest, the mod, basically the language you want, the library you want, React, enter, and your project would get created. Yes, project name is my project. Yeah. So here you can see our Vite project is ready. Fine. What's next? Just go inside your project and run it. The running command for this is npm run dev. The running command you can see from here. Script dev. So can I directly run it without installing non modules? Let's try. No, क्योंकि non modules में ही we will get the white library. Correct. एक second. Firstly, we have to install the npmi node package manager. Say we will install all the modules. Then only we can run your application locally at least. You can change the running command from the script. Ashok.
Okay, installed. Now npm. Okay, here's your local server. Okay, this is the basically it gives you a template of your application. Just a simple count application. Fine. Okay. So for now, we are not requiring this. Let's try to build our own counter application ताकि आपको थोड़ा रिकैप हो जाए क्या क्या किया है आप लोगों ने अभी तक. ये हमारा एप्लीकेशन है. दिस इज योर कंपोनेंट बेसिकली जिसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हो. सिंपल. स्ट्रिक्ट मोड को यू कैन रिमूव एज ऑफ नाउ. फाइन. सो काउंटर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चाहिए अपने को अभी. रिटर्न. एक डिवीजन ले लेते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें रहेंगी. माय प्रोजेक्ट. ठीक है. एक विजिबिलिटी के लिए काउंटर ले लेते हैं से उसको H2 में रख लेते हैं. H2 एंड काउंट और उसके लिए एक स्टेट ले लेते हैं. सो लेट count and set count. We will use the use state here. Okay. So what is use state? It is a hook which is in the React application. Okay. Now we want to display that current count value here. Correct. Afterwards, we can have two buttons from where you can just increment or decrement it. Simple. So how it works is whenever any of the state that you have declared inside your app got updates with this set count method. So basically the whole basically whole component gets re-rendered. So वो re-render होगा तो इस बार H2 में क्या आएगा आपके पास. The current value of count. Simple. So it is already running. We can see it here. This is my project count, incrementing, decrementing. Easy. Any issues till now? Okay, clear. ठीक है. Now comes कि हमें ये चीज अभी with the help of use ref करनी है. So use ref यूज करने के लिए क्या करेंगे हम. Let count equal to use ref 0, initializing with 0. Fine. So basically कभी भी आप अगर ठीक है. फर्स्ट तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रिटर्न क्या करते हैं आपको. व्हाट डज इट रिटर्न. लेट्स सी. इट माइट बी गिविंग अस सम एरर्स क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं. सी व्हाट इट इज गिविंग अस. एन ऑब्जेक्ट. करेक्ट. which we can update using that key value pairs, which is what is the key that is given to us. Current. इसको आप अगर अपडेट करते हो तो यू विल अपडेट योर होल ऑब्जेक्ट ओनली. ओके. इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी. ठीक है. तो बटन को यहीं पर रहने देते हैं. बट विद दैट ऑन क्लिक we will just set the value of this count. So instead of doing this, what we will do, count dot current जो वो provide कर रहा है and plus plus. Fine. Similarly नीचे count dot current minus minus. But the issue here is
what is the issue? Object are not valid, tree child. What we are entering? Count dot current. Fine. तो issue here is कि मैं increment कर रहा हूँ, decrement कर रहा हूँ, but it is not getting updated in my DOM. Why is that? So that is the difference between your use state and useref. So आप useref का अगर useref state से अगर कुछ भी चीज़ अपडेट होती है, सपोज ये काउंट हमें किसी भी पॉइंट पे अपडेट होता है, यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट कॉज द री रेंडर. सो आपका एप्लीकेशन री रेंडर नहीं होगा, विच मीन्स इन द बैक एंड तो ये अपडेट होंगे. ओके, क्योंकि देर आर मैनी थिंग्स दैट वी डो नॉट वांट टू शोकेस ऑन आर डोम, करेक्ट, इमीजिएटली. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव यूजरेफ. बट नाउ अगर मेरे को ये वैल्यू अपने यहाँ पे शो करानी है करंट की, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट कैन बी डन है? वी नीड टू ऐड समथिंग जिससे आपका ऐप री रेंडर हो, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द अपडेशन ऑफ एनी स्टेट, करेक्ट. So for that we need a use state. So can we have a simple use state? Let's say flag. फ्लैग है, ठीक है. और जैसे ही ये अपडेट हो रहे हैं, कैन वी अपडेट द स्टेट ऑल्सो ऑफ द फ्लैग ऑल्सो? यस नो? काउंट डॉट करंट प्लस प्लस सेट फ्लैग एज अपोजिट, क्योंकि हमें सिर्फ अपडेट करना है ईच पॉइंट पे, करेक्ट. सेम थिंग यू कैन डू हेयर ऑल्सो. काउंट डॉट करंट as minus minus and set flag as opposite of the flag currently. See, currently it is 0 increment. We have the current state of the user. Decrement, it will working. Any issues here? Why we are using use state? Yes, you can say Jeevan. The working is same, just that it will not re-render the page. Abhijit, where is the issue? री-रेंडरिंग कब हो रही है? ओके. तो सी, हमने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, ये ऑन क्लिक से कॉल बैक फंक्शन रन होगा, ऐसा नो? फुल. देन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपका जो यूजर एफ है पहले उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, देन आपका जो यूज स्टेट का वेरिएबल था उसको अपडेट कर रहे हैं, करेक्ट. तो जैसे ही यूज स्टेट वाला अपडेट होगा, इट विल गेट रीरेंडर्ड. सेम गोज विद प्लस, करेक्ट. अगर आप देखोगे तो मैं एक जगह से हटा देता हूँ, सपोज डिक्रीमेंट वाला जो बटन है वहां से मैंने फ्लैग को अपडेट नहीं किया. ओके, सो लेट्स रिफ्रेश. सो डिक्रीमेंट मैं कर रहा हूँ तो बैकएंड में वो हो रहा है. ओके, तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट दबाऊंगा तो वहां से स्टार्ट होगा. गॉट इट? इंक्रीमेंट में इट इज गेटिंग अपडेटेड इस टाइम, बट डिक्रीमेंट में हमने फ्लैग को अपडेट नहीं किया, इसलिए वो डॉम पे री रेंडर नहीं हो रहा है. फाइन.
डन गाइस, इजी। सो जैसे आपके पास यही चीज, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स, ये मेजरली हम यूज करते हैं अपने फॉर्म में, क्योंकि अभी प्रीवियसली आपने क्या देखा था कि हम कोई फॉर्म बनाते हैं, सपोज डिवीजन फॉर्म। फॉर्म में आपके पास सपोज मल्टीपल इनपुट्स हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टाइटल, यू कैन अज्यूम दैट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर असाइनी, ओके, काइंड ऑफ असाइनमेंट यू आर हैविंग, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा था पहले, आपको एक, सपोज यूज स्टेट अगर यूज नहीं कर रहे हो तो हर इनपुट टैग के लिए अलग अलग यूज स्टेट चलेगा, जैसे ना उनको अपडेट करने के लिए। बट उससे सिंपलर चीज हमने क्या निकाली थी, एक फॉर्म नाम का हम यूज स्टेट पूरा ही ले लेंगे कि फॉर्म सेट फॉर्म यूज स्टेट, जिसके अंदर टाइटल और असाइनी दोनों है, करेक्ट। और ऑन चेंज पे हम ट्रिगर कर रहे थे इन चीजों को। ऑन चेंज, कोई तो एक फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल चेंज। तो ऑन चेंज पे हम हैंडल चेंज को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे हैंडल चेंज में, ये इवेंट आया अपने पास, और इसकी हेल्प से हम जो फॉर्म की स्टेट है उसको अपडेट कर रहे थे, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ नेम। ऐसा ना, नेम आप डाल सकते हो, नो इश्यूज। नेम टाइटल, नेम एज असाइन, ऐसे ही कर रहे थे पहले। ऐसा ना, बट इस चीज में एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है बताओ। सबमिट पे हम कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। टाइप सबमिट, क्या ड्रॉबैक था बताओ चैट में। इट विल री रेंडर ऑन ईच एंड एवरी चेंज, करेक्ट। तो ये फॉर्म है अपने पास, जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो एवरीथिंग इज गेटिंग री रेंडर्ड। तो उसका सब एविडेंस क्या है कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नॉट फॉर्म हेलो, सी, मैं जितनी बार भी यहाँ पे टाइप करूंगा कुछ उतनी बार ही हेलो प्रिंट होगा, ये सुनो। सो दिस थिंग आई डू नॉट वांट। ऐड टास्क करेंगे तो कंसोल वाला अपने पास टास्क करंट वाला, फाइन। तो इस चीज से बचने के लिए व्हाट वी कैन यूज इज कि कैन वी हैव दिस फॉर्म एज यूजर एफ, इट कैन स्टोर एनीथिंग, is no? So what will be the change will be set form की जगह what will we use, form dot current is equal to this, yes or no? Let's write something. Rahul assigning myself at task, so हमारे पास value आ गई, you can see here myself. If you want just print here console.log form.current. Let's see now, at task.
Sign me, title Rahul. Okay. Why it is that much big? Form dot current. अच्छा हम इसको अपडेट किधर कर रहे हैं? डॉट 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 फॉर्म. यस. डॉट डॉट फॉर्म डॉट करंट. अभी ठीक है. See, it does. Fine now. Okay. See it very carefully. Any issues, please tell me. Let me open it side by side. We are starting. Just observe it for a minute. No issues? Okay. So there is a small activity that we will do. Just hold on. एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा. टिल देन एक वेट की एप्लीकेशन आप बना लो अपने पीसी में लोकल. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. मैं एक बार अपने पास कॉपी कर लेता हूँ. वीएस कोड विजिबल ना? गाइस, वीएस कोड विजिबल? ओके. सो बेसिकली इन दिस एप्लीकेशन व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास एक कंपोनेंट ऑलरेडी गिवन है. आपको जस्ट उसको कंप्लीट करना है एंड ईच एवरी स्टेप इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके. सो दिस you need to complete in the breakout rooms. I will separate the groups of 4 to 5 people and there you can solve it. तो ये डॉक्यूमेंट का शेयर मैं आपको शेयर कर लिंक आपको शेयर कर देता हूँ. ओके. Link I have shared in the chat. You can open it and tell me if visible. Okay, I can see the people here accessing it. ठीक है. तो इसको आपको कंप्लीट करना है. ओके. So let me open the breakout rooms.
Okay, I have opened the rooms. You can collaborate with each other and try to complete the assignment. You have 10 to 15 minutes for each this question. One of the person can share the screen, other can collaborate. Guys, please join the breakout rooms. Guys, please join the breakout room. Otherwise, I'll drop you out from this meeting. Okay? हेलो सर। हाँ करण, सर वो स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है क्या? हाँ। ओके, enabled. Mulkesh, Nitesh, Shahrukh, are you guys here? ये सर क्या लिंक दोबारा भेज सकते सर? वो मतलब एग्जिट लिंक में से लॉस्ट Talk link सर मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा डाल दिया. अभिजीत कहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहे? है ब्रेकआउट रूम में। सर मैं गया था वहाँ पे 2 मिनट तक स्क्रॉल मैं कनेक्टिंग हुआ, आपको उसके बाद आउट डाल हो देता गया हूँ, मीटिंग। डाल देता हूँ. शाहरुख, नितेश, are you guys here? Shahrukh, are you here? Nitesh,
Yes. Hi, Atya. हेलो सर। हाँ, ये आदित्य। सर क्लास नहीं है आज। क्लास इज देयर बट आप लेट ज्वाइन किया अभी। हाँ सर, नेटवर्क का इशू था मेरा थोड़ा। बेसिकली एक असाइनमेंट दिया है मैंने लोगों को, वो ब्रेकआउट रूम में दे आर सॉल्विंग। इफ यू वांट टू ओके ज्वाइन सर। ज्वाइन एनी ब्रेकआउट रूम। ओके सर, थैंक यू। अनूप, आर यू है?
भाई ये क्या हो गया? क्या हो गया इस डन? हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। ओके, ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। लेट मी क्लोज द ब्रेकआउट रूम्स। Okay, everyone back? Okay, can you guys raise your hands who have completed it? Only Harshit? बाकी नहीं हुआ किसी का? ओके, ज्योति का हो गया। करण हैज आल्सो डन। प्रीटी बेसिक सी एप्लीकेशन थी। हर्षित, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? कैसे किया आपने? सर, मैं जीवन के ग्रुप में था तो हमने साथ में वही ठीक किया। जीवन ने स्क्रीन शेयर की थी। ओके, ज्योति आप बताओ। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। हाँ। एक सेकंड। एक सेकंड सर, इसे ऑफ कर दूँ। इसे फिर से सर, मैंने ऐसे किया था ये। मैं इसे दोबारा फ्लैग से किया है? इंस्टॉल कर। सेम। यस सर। ठीक है। इससे पहले मेरे को सीडी डेमो में जाना होगा। नहीं, यहीं पे कोड दिखा दो, वो ऐप वर्क कैसे कर रहा है वो सबको बताओ। ओके सर, ये कोड है। सबसे पहले मैंने मतलब हमारे ग्रुप ने किया था, जिसमें हम्म। राहुल और रोहित, विशाल और उत्तम, ओके। हाँ, और एक और कोई था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो हम सब ने मिलके किया है। सबसे पहले हमने एक यूज रेफ बनाया काउंट नेम से। उसे ठीक है। 0 वैल्यू दे दी, क्योंकि इसमें ऐसा बोला है इनिशियल वैल्यू काउंट की देनी है। फिर उसके बाद ये जो फंक्शन बना हुआ था, इसमें खाता है कि इंक्रीज करनी है काउंट की वैल्यू। तो हमें काउंट अकेले तो हो नहीं सकता है, वो करेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका करेंट वैल्यू को फेच करने के लिए प्लस डॉट करेंट प्लस प्लस किया। ठीक फिर है। उसे प्रिंट करा दिया, क्योंकि लिखा हुआ है कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो काउंट की वैल्यू करेंट डॉट काउंट से ही आएगी। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एड इवेंट लिस्नर लगाने हैं, जिसमें इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन कॉल हो। तो मैंने इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन कॉल कर दिया इधर लाइन नंबर 8 पे जो बना हुआ है।
पर ये ठीक है। ऐसा करने से ये री रेंडर नहीं हो रहा था, हम्म। मतलब काउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा था चेंज बटन क्लिक या पे भी। तो उसके लिए आपने बताया था फ्लैग बनाने के लिए, तो फ्लैग बनाया। और जैसे ही ये फंक्शन है इंक्रीमेंट काउंट, इट मीन्स बटन क्लिक हो तो फ्लैग को मैंने बार बार रीसेट कर दिया टॉगल, तो ऐसे ठीक है। ही वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, जो यूज स्टेट का वेरिएबल है वो अपडेट होगा तो आपका री रेंडर हो जाएगा, और जो करंट हाँ। वैल्यू है आपकी रेफ की वो डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है, यू कैन स्टॉप शेयर। ओके सर। ओके। सो एक और असाइनमेंट है यार, बट वो आप घर पे कर लेना, क्योंकि एक असाइनमेंट है जो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था। ओके, वो आपको मिला था डे 4 पे। 07 है जो एडवांस टास्क मैनेजर है। मैनी ऑफ द पीपल आर फेसिंग इश्यूज इन दिस। तो क्वेश्चन सबने पढ़ा है, ये सुनो क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस हो गया कुछ लोगों का? नो। ओके, कुछ कुछ इश्यूज है, कोई जगह ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको एक तो डीबी बनाना है टू डूज नाम से। जेसन सर्वर से आपका ये रन हो जाएगा, पोर्ट नंबर आप दे सकते हो मैन्युअली। एक बॉयल प्लेट आपको गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फर्स्टली तो इम्प्लीमेंट अ फॉर्म टू ऐड टास्क। टास्क आपको डालना है, देन आपको उसको अपडेट करना आना चाहिए, डिलीट वहाँ पे होना चाहिए, और सारे टास्क विजिबल रहने चाहिए। देन इफ़ यू वांट तो आप फिल्टर लगा सकते हो विद द असाइनी नेम। सिंपल, क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, बट इसका जो एप्लीकेशन है दैट माइट बी इंटरमीडिएटिंग, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फॉर सेविंग द टाइम आई हैव ऑलरेडी बिल्ड इट इन दिस फोल्डर। सो फर्स्ट लेट मी ट्राई टू रन इट कि वो वर्क कैसे कर रहा है। फर्स्टली तो db डॉट जेसन है, इसमें सपोज हमारे पास एक ही चीज़ है, इसको मैं हटा देता हूँ। जेसन सर्वर इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है कर? सर वही सिमिलर कमांड डाल रहा हूँ वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन वो एरर थ्रो कर रहा है बार बार। क्या एरर आ रहा है? मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? एरर बताओ ना पढ़ के। दिखाता हूँ एक सेकंड। मतलब वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है सर, उसके अंदर मतलब वहीं पे एरर आ जा रहा है बार बार। मैं एक बार ओपन ये करके हमने जेसन स्क्रीनशॉट सर्वर भेजता हूँ। चला दिया, आप स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, सिलेक्ट है ना, हाँ हाँ, वेट करो। स्लैश टू डूज। Okay, I was in wrong folder. Sorry for that. Here it comes. ठीक है, दिस इज आर बेसिकली db.json, और ये कोड है। लेट मी ओपन इट, CDN से ही बनाया है तो वी कैन ओपन इट लाइव सर्वर। ओके, इनिशियली इस काइंड का आपके पास फॉर्म है, ठीक है, जूम करना है। ओके, बेसिकली ये आपका टास्क मैनेजर है, यहाँ से आप टास्क को ऐड कर पाओगे। किसी भी पॉइंट पे आपको सारे टास्क चाहिए इन द नीचे, यहाँ पे बॉटम में, तो गेट ऑल टास्क, ये फिल्टर के लिए शो इनकम्प्लीट टास्क, फिल्टर बाय असाइनी एंड रीसेट फिल्टर नॉट। जितना आपको बनाना है वो बना सकते हो। तो सपोज माय टास्क इज टू कंप्लीट रिएक्ट, असाइन इज राहुल, ऐड टास्क किया तो इट गॉट एडिड हियर। ओके, बॉटम में, फाइन, कैन बी अपडेटेड, यू कैन अपडेट इट लाइक दिस ऑल्सो। आपको अगर री रेंडर से बचाना है इसको तो आप यूज रेफ का यूज करो, ठीक है।
और एक हमने एडिट बटन भी दिया है जिससे आप डायरेक्टली उसको एडिट कर पाओगे थ्रू द अपर इनपुट फॉर्म। इसमें इफ आई क्लिक ऑन एडिट हेयर, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपको अपडेट करना है। डेट कंप्लीट बाय जून, असाइन इज हाउ ओनली अपडेट, वो यहाँ पे अपडेट हो गया। सिंपल। ये तो हो गई आपकी एडिट फंक्शनैलिटी। कंप्लीट करना है तो तेरे सिंपल टिक बार्स, वो आप रिफ्रेश करोगे तो भी टिक दी रहेंगे। ठीक है। और ये मेरे को फिल्टर करने हैं अगर राहुल नाम के टास्क असाइनी जो है, तो राहुल फिल्टर बाय असाइनी, सो ओनली दैट विल विजिबल। एट एनी पॉइंट मेरे को सारे टास्क चाहिए तो गेट ऑल टास्क। शो इनकम्प्लीट तो ओनली अनटिक देंगे। सिंपल। मेरे को ये डिलीट करना है तो लेट्स डिलीट। गेट ऑल टास्क तो वहां से डिलीट हो गया। एनी इश्यूज हाउ इट इज वर्किंग? द वर्किंग प्रोग्रेस क्लियर? सबको पता है ये करना है। सो लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग इट। सो फर्स्ट थिंग, आपका हमने ये डिस्ट्रक्चर कर दिया, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हमको यूज करना है रिएक्ट से, क्योंकि रिएक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओनली, करेक्ट। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाएंगे नीचे। फर्स्ट आपके सारे टास्क, ये वो एरे है आपके टास्क वाला। देन दिस इज द करंट टास्क जो आप फिल कर रहे हो वहां पे इन द फॉर्म, करेक्ट। वो टास्क है ये। जो भी आप फिल करोगे आपके डीबीजेसन में आपके पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे? एक्सियोस से हमने डाले हैं। नाउ एक है फिल्टर टास्क, ये एक एरे है जब आप फिल्टर कर रहे होगे। एक है फिल्टर बाय असाइनी जो हम एज फ्रॉम द स्ट्रिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये यूज इफेक्ट हमने डाला है क्योंकि ये रीरेंडर होते ही आपके पास सारे टास्क विजिबल हो ऑन द स्क्रीन। इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन रिमूव। देन दिस इज द बेस यूआरएल फॉर योर डीबीजेसन। देन आपके पास है ये गेट टास्क। इसमें आप क्या कर रहे हो? जो यहाँ से हमने कॉल किया, जितने भी टास्क आपके डीबीजेसन में पड़े हुए हैं वहां से उठा के उसको सेट टास्क में डालना। फाइन। ओके। यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं हम देखेंगे अभी, क्योंकि फिल्टरिंग भी हमने लगाई है नीचे इसलिए। नाउ हेयर इज एन ऐड टास्क। अगर उसकी आईडी नहीं है, इफ आईडी इज देयर तो वी हैव टू पुट इट देयर, ऐड कर देंगे अपने डीबीजेसन में। एंड दिस इज आर न्यू टास्क, है ना। एल्स वी विल पोस्ट। अब ऐड टास्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? व्हेन डू वी यूज पुट? पुट कब यूज करेंगे? सो बेसिकली अगर आपके पास वो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो यहाँ पे ऐसे वर्क करना नहीं चाहिए। ऐड टास्क को हम कॉल ही नहीं कर रहे उस पॉइंट पे, तो यहाँ पे खाली पोस्ट से भी काम चल जाएगा। ओके। वो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि नई आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं। फाइन। और पोस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपका फॉर्म डाटा है करंट उसको एम्प्टी कर देंगे जैसे वो स्टार्टिंग में था। और उसके बाद गेट टास्क को कॉल कर देंगे ताकि डाटा आपका विजिबल हो जाए आपके डॉम पे। देन डिलीशन के लिए सेम प्रोसेस, बाय द आईडी हम डिलीट कर देंगे। अपडेट के लिए वही पुट है आपका विद द टास्क आईडी एंड द टास्क करंट टास्क। ये टास्क कहाँ से आ रहा है आपका? हम पास कर रहे हैं, जब अपडेट को कॉल कर रहे हैं तो पास कर रहे हैं। ठीक है। एडिट एंड ऑल ये सब चीज़ें हम देखेंगे आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। फर्स्ट इज आपका H1 है, टास्क मैनेजर है। देन हेयर कम्स द फॉर्म। फॉर्म में क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ऑन सबमिट हम ऐड टास्क को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ओनली ऐड टास्क भी है, करेक्ट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके फॉर्म में जो जो फिल होगा उसको ऐड कर देगा डीबीजेसन में। देन आपका इनपुट फॉर्म है जिसमें आप डाटा डाल रहे हो, इसकी वैल्यू आप उठा रहे हो न्यू टास्क और टाइटल जो हमने फुल ऑब्जेक्ट बनाया वहां से वो वैल्यू आ रही है, और उसमें ही सेट कर रहे हैं हम हेयर। फाइन। देन व्यूअर हेयर ऑन चेंज पे यहीं पे सेट भी कर रहे हैं। देन आपका असाइनी सेम प्रोसेस,
बटन जो आपका सबमिट वाला बटन है, ये टास्क आईडी हमेशा नहीं आएगी। तो ओके ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखो, जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये जो एरे पे इसका जो आईडी है वो एडिट होगा। ओके, तभी हम वहाँ पे पुट कर रहे थे। तो सेम आईडी पे अगर आप एडिट कर रहे हो तो वी हैव टू यूज पुट, तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे ऐसा ना, ताकि वो नया ना बन के सेम में रिप्लेस हो जाए। फाइन, वहाँ पे इसलिए पुट कर रहे थे। अगर न्यू टास्क आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो बटन का नाम क्या होगा, अपडेट टास्क, अदरवाइज ऐड टास्क। सिंपल, कंडीशनल रनिंग। देन कुछ बटन्स हैं, गेट टास्क जो आपको टास्क ला के देंगे, देन शो इनकम्प्लीट टास्क जो आपको सिर्फ अनचेक टास्क ला के देंगे। ये कैसे वर्क कर रहा है ये देख लेते हैं। शो इनकम्प्लीट टास्क, यहाँ पे देखो फिल्टर लगा रहे हैं, और वो फिल्टर्ड हमने अलग से एक स्टेट ली हुई है उसमें सेट कर देंगे। फाइन, और वही शो होगा वहां से फिर। ओके, होटल्स आप लोगों को मेजरली इशू आ रहा था अपडेट में, तो रीसेट एंड ऑल इज फाइन। ये हमने वहाँ पे शो कर रहे हैं फिल्टर टास्क लिस्ट। तो ये एक है एडिट टास्क, इसमें आपको इशू आ रहा था, तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया एडिट टास्क। और ये टास्क कौन सा है, जो यहाँ से आ रहा है एलिमेंट, जो आपका एरे का एलिमेंट है। ओके, उसको एडिट करने के लिए यहाँ पे आएंगे एडिट टास्क में, और ये टास्क यहाँ पे है, और इसको सेट कर देंगे सेट न्यू टास्क, विच इज हेयर टास्क मैनेजर में सेकेंड वन। इसको सेट कर देंगे तो वो डीबी जेसन में चला जाएगा फिर। फाइन, क्योंकि री रेंडर हो रहा है तो गेट टास्क कॉल हो रहा है हमारा हर बार। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके लेट मी पुट इट हेयर। Okay, you guys are already having the link of it. I'm sharing it again. यहाँ से आप उठा सकते हो इस कोड को एंड सी बाय योरसेल्फ, है ना, कैसे वर्क कर रहा है। Then your homework also I'm adding it here. ओके, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, छोटा सा टास्क है, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे। फाइन, ओके, आई एम पुटिंग इट अगेन द लिंक। यस कर, हेलो सर। सर बताओ वो करण। सीआरए वाला असाइनमेंट है ना, फर्स्ट वाला, तो उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डाउट है थोड़ा, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर करना है क्या। खाली वो हाँ, एक्सप्लेन कर तो दो एक बार। ये दिखाओ एक बार। दिखा दो।
स्क्रीन विजिबल है सर? या ओके, तो असाइनमेंट सर, इसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना, इसकी थर्ड वाली, ये वाली अपडेट डॉक्यूमेंट टाइटल, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसमें करना क्या है मतलब मैंने फैच कर लिया डाटा, एक मिनट। मैंने इवेंट भी लगा दिया वो वाला की माउस वाला, लेकिन इसमें क्या करना है मुझे पता चल रहा। ओके, फर्स्ट थिंग क्या करनी थी आपको कि क्रिएट फैच अ रेड करना है। कंपोनेंट दैट fetches data from the public API, ठीक है, and display the data in your component, ठीक है. Then subscribing to external event, that's the browser event, mouse movement, etc. The event data to the console or update the component state accordingly, ठीक है. Updating the document title. Develop a React component that updates the document title dynamically based on component lifecycle event. Exactly. Example देखो, जैसे यहाँ पे मजा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, दिस इज द हाँ डॉक्यूमेंट टाइटल, हाँ हाँ ठीक है. सर। तो सपोज आपके पास रिएक्ट में सेम ही ऐप कंपोनेंट में मल्टीपल कंपोनेंट्स आप माउंट और अनमाउंट कर सकते हो, करेक्ट. हाँ हाँ हाँ। सो बेस्ड ऑन द करंट कंपोनेंट दैट इज देयर इन योर एप्लीकेशन, आपको ये डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, ऐसा. अच्छा, ये टाइटल चेंज करना है हाँ, उसका? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर कुछ आइडिया बता दो उसका कैसे होगा वो, मतलब। डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी होता है ना आपके पास, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट रिसर्च डॉट करना टाइटल, पड़ेगा. अच्छा डॉक्यूमेंट हाँ डॉट टाइटल करके। हाँ. ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर इश्यूज किसी को? हाँ सर, मैंने वो स्क्रीनशॉट आपको दे दिया, आप एक बार वो देख लेना, हाँ, उसमें एरर एक क्या सेकंड, आ रहा है। लेट मी जो चेक इट. जेसन उसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। सर मेरा इशू था, मल्टीपल एडिट बॉक्स क्लिक हो रहे हैं सिंगल क्लिक पे। क्योंकि मैं पे सब में वो एडिट एक बटन पे क्लिक करने पे सब पे एडिट का ओपन हो जा रहा है। एक सेकंड. ओके सर। यार आप गलत फोल्डर में हो. करण, करण आपने कमांड क्या डाली थी एक चलाने से पहले? सर मैं वो जो जो मेन फोल्डर है ना, एडवांस टास्क मैनेजर हाँ, वाला, उसके अंदर ही कर रहा हूँ इंस्टॉल। क्या लेकिन इंस्टॉल कर रहे हो? वो जेसन सर्वर वाला जो कहते हैं वो है ना, लिंक, वही डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो हो नहीं रहा है। क्या लिंक है बताओ? जो वहां पर मेंशन हो रखा है क्वेश्चन के अंदर, जेसन लिंक। सर्वर वॉच है ये वाला? हाँ, जो उसके अंदर दे रखा है ना इंस्टॉल करने के लिए जेसन सर्वर, वो वाला। जेसन सर्वर इंस्टॉल तो यार ग्लोबली होगा, एक ही बार करना है वो आपने. मैं एक बार देखता हूँ। मैंने आपको शायद पहले भी दिया था वो. नहीं सर, इसमें कमांड दे रखी है ना कि पहले तो npm इंस्टॉल और जेसन सर्वर वाला डाउनलोड करना है, हाँ, तो ये हो गया ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डीबी डॉट जेसन बना दिया प्रॉपर, ये फॉर्मेट दे रखा है। फिर उसके ठीक बाद है. एक और कमांड करनी है रन सर्वर के अंदर, जेसन सर्वर वॉच डीबी डॉट जेसन पोर्ट करके जो है, ये हाँ, वाली कमांड रन नहीं हो रही सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर लो आप. ओके। ये ना, हाँ, इसको ढूंढिए. ठीक है, यहाँ पे आपको इसको चलाना है डीबी को, करेक्ट. हाँ हाँ। बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल्ड ऑन योर सिस्टम. यार फिर आपको npx से चलाना पड़ेगा. npx
कब इंस्टॉल किया था जेसन सर्वर आपने? और जेसन सर्वर सर मैंने अभी करा था, जब क्वेश्चन कर रहा था पहले वो इंस्टॉल करा था, फिर उसके बाद करा था। सर सर हम्म, इसका नोड वर्जन मुझे लगता है 16 है, और हाँ ये 16 है। हाँ हाँ, तो अपडेट करो 18 या 20 करो, हो जाएगा। ओके। ओके। npm uninstall, ये क्या स्पेलिंग? कमांड सही क्यों नहीं आ रही आपके पास? डबल एन आ गया। ठीक है, मैं आपको स्लैक पे डाल रहा हूँ कमांड्स, वो आप रन कर लेना। ओके, ओके ओके सर। जस्ट वन सेक। सर मुझे नोड वर्जन दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, 20 अपडेट करना पड़ेगा, मतलब नोट हाँ, वर्जन 16 क्या पे है? जैसे जाऊंगा। क्या है अभी? अभी 16 वाला ही है, जो पहले डाउनलोड करा था ना वही वाला है। चलेगा, वो भी चलेगा। एक सेकेंड। करन यार, पहले अनइंस्टॉल कर लेना, फिर इंस्टॉल करना। ओके, ज्योति आप बताओ क्या इशू है? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ। सर एक्सियो से एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। बस दिक्कत इसमें आ रही है, जैसे कि मैंने एडिट किया, इसमें तो ये मल्टीपल बॉक्स क्रिएट हो जा रही है, जबकि क्योंकि मैंने मैप का यूज किया है तो ये मल्टीपल ही क्रिएट होंगे। पर उसमें एक आईडी के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाए कि इस आईडी पे मीन्स इस फंक्शन पे क्लिक करें, तो फिर इस बटन पे क्लिक कर रहे तो सर ये तो आप सबके लिए मैप आपको ना करें। आपको आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था की का कॉन्सेप्ट। हाँ सर, मैंने की लगाई है इसमें, किधर लगाई है? यहाँ पे भी लगाई, फॉर्म में भी। फॉर्म में लगाई है? हाँ सर। ओके। और मैंने सेलेक्ट टैग में भी सब में की दी है। एलिमेंट और टाइटल। डिलीट भी काम कर रहा है, पुट पोस्ट सब काम कर रही है। इसमें चेंज करूंगी तो हो जाएगा, एक में ही चेंज होगा, पर ये क्रिएट मल्टीपल बॉक्स हो जा रहे हैं। आई डिस्प्ले नो में थोड़ा यूआई में इशू कॉम्प्लेक्स हो है। जाएगा आपका, क्योंकि आप सेम जगह पे ही उसको फॉर्म बनाना चाह रहे हो। हाँ सर। जस्ट अ सेक। ओके सर। लाइन नंबर 132 पे ई इज इक्वल टू 1 किया आपने, मतलब? सर ये डिस्प्ले के लिए कि अगर एडिट पे के बटन पे क्लिक हो तो फ्लैग जो मतलब ये एडिट का फ्लैग है वो 1 हो जाए, और जैसे ही बटन का क्लिक कंप्लीट हो तो फिर से मैंने, जैसे कि फॉर्म सबमिट हो गया तो मैंने इसमें जो एडिट फंक्शन है उसमें ई की वैल्यू फिर से रिवर्स कर दी 0 पे। ये क्या, कि एडिट की वैल्यू फिर से रिवर्स हो जाए? ओके यार, आपका कोड मेरे को देखना पड़ेगा, तो मेरे को स्लैक पे डाल दो ये आप एक बार, है कैसे? ना? पूरा ही देखना ओके पड़ेगा। सर। ओके सर। बेस्ट तो बाकी वही सर रहता ये है, जो फॉर्म कर आपके रहा पास है। ऑलरेडी है उसी को अपडेट करना, है ना? और हाँ, और सर ये किसमें की का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मैंने तो सब में दिए, इस वजह से कुछ तो रह कुछ गया होगा इशू कुछ नहीं। जगह। हम्म, ओके कोई तो सर। मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे सेम नाम के, उसमें की नहीं होगी। ओके सर। और सर मुझे बस ये लॉजिक पूछना था, ये जो असाइनमेंट गिवन थे, एक सेकेंड, हम्म। मैं ओपन कर देती हूँ इसे। सर इसमें जैसे पहले वाला तो आपने बता दिया, इसमें पर दूसरे वाले में क्या करेंगे? एक्चुअली मैंने जैसे भी मुझे देखा नहीं है। लॉजिक जानना लेट था। मी रीड इट। ओके सर। क्लीन अप फंक्शन, यूज इफेक्ट। ठीक है, कल नहीं मिला आपको, पहले मिला हुआ है ना? हाँ सर ये ठीक है। हम्म, Subscribe to a timer. Create a React component that subscribes to a timer using the use effect. तो इसका मतलब कहने का क्या है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन माउंट हो तो आपका एक यस टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके। ओके components mounts and clears when the component unmounts using the cleanup function. cleanup function होता है यूज इफेक्ट में, करेक्ट?
ओके तो सर। जैसे ही वो करंट कंपोनेंट आपका अनमाउंट हो फ्रॉम द एप्लीकेशन, तो वो सर, जो आपका टाइमर है जो आपने सेट इंटरवल से स्टार्ट किया है, हाँ, वो that should रीसेट हो get जाए। stopped. नहीं, that should get cleared from the memory itself. ओके, क्लियर कर दो, क्लियर इंटरवल। टोटली रिमूव हो जाए। हाँ, ओके। और सच सर ये रहेगा तो माउस इवेंट document स्क्रोल का कौन सा इवेंट होता है इसके लिए? स्क्रोल इवेंट। ओके, जैसे इनपुट पे ऑन चेंज होता है, हाँ, तो इस पे ऑन स्क्रोल होता है इसके लिए। रिसर्च करो। ओके सर, मैं देखती हूँ। और सर हाँ, इसका दूसरा वाला भी जैसे कि हम्म, ठीक है, नहीं मैं ये कर लूंगी। ये सर बस ये था, मैं सिलेक्ट करती हूँ वाला ठीक है। एडिट का। थैंक यू सर। हाँ गाइस, you can drop off if you are not having doubts. Thank you for हाँ joining. सर, मेरा एक डाउट था सर। Sorry. सर एक डाउट था मेरा। हाँ आशित, आपने पुट का बताया था सर, मैंने यूज इफेक्ट उस टाइम पढ़ाया नहीं गया था, तो मैंने उसका यूज नहीं किया था। किस चीज़ और का, एक्सिस का? यस सर, यूज इफेक्ट उस टाइम पढ़ाया नहीं गया था जो अच्छा, आपने, तो मैंने उसका यूज किया नहीं था, तो बटन का यूज किया था रेंडर करने के लिए डेटा को। सही है। और सर उसमें पुट में मैंने एक फॉर्म बनाया था, और फॉर्म में यूजर से आईडी ली थी, जो भी आईडी वो डालेगा वो फॉर्म एडिट कर सकता है। तो सर उसको फिर अपडेट करूँ या फिर मैंने सबमिट कर दिया कोई इशू नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, कर सकते हो अपडेट। ओके सर। ज्योति, आपने ऑफिसर बुक किया इसी के लिए किया था? हाँ सर, मैंने इसी के लिए किया था, एडिट ठीक है, वाले के लिए। ठीक है। ओके सर, मैं शेयर कर रही हूँ अभी हाँ, स्लैक पे। कोई बात। चलो ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट।